go into the deep silence. The breathing we were taking, that is Ashatyamay, Anandamay. It is within you. It is within you. We were listening the mantras Anandamay, Chaitanyamay, Satyamay, Parameshwari. That divine energy which is blissfulness within you, which is the highest truth within you, which is the highest consciousness within you. Welcome, Sonja. That is who always taking care of you unconditionally. But you are ignoring the force which is always helping you, the force which is always taking care of you. Not only you, your emotion, your health, your mind, your consciousness, your family, your surroundings. That is a very hidden kind of energy which is always protecting you all the time. That is the motherly energy which is Anandamay. Anandamay means the energy which is full of blissfulness, which gives you the internal happiness, internal protection, which gives you the internal peace. And that energy is highly protected, which is full of consciousness, which is full of protection, which is full of caring. And that is the Chaitanyamay also, which is always keeping you in consciousness, deeper consciousness of self. And we don't have time to recognize. We don't have time to even remembering. We don't have time to even notice the energy which is keeping us well, the energy which is keeping us healthy, always protected, always covered, always be in the radar where we are, what we are doing. Some silent, hidden, feminine matritva energy is always walking with you just like a shadow. And the shadow energy is not visible, but you can always remember, always see, always aware through your internal awareness mind, internal eye of awareness. But when you express your gratitude, when you are experiencing silence, until unless you are not giving your space in the silence, until unless if you are not giving the space, the stillness, if you don't stop, then this energy is there, but you are not recognizing, you are not even awareing of that. And that energy feels ignored. The energy feels unwanted. Then what happens? That energy keeps silence. It keeps mums. Okay, fine. He has no awareness of my existence. So what is happening? You always fight with the situation. You always struggle with the situation. You always go against the flow, against the river. So when you are going against the river, then what you have to do? You have to give the fullest strength to fight with the force. And you get tired, you get exhausted, you get so many anxiety, you get so many stress. My dear friend, my dear family, the energy which is walking with you all the time, just like a shadow, just flow with this. Until unless you are not giving the silent space within you, until unless you are not experience the meditation state of consciousness, you will not allow yourself to go the flow with the nature. Then what happens? I just always tell in my workshop, commitment
and commitment and the sustainability rhythm of yourself is the most important thing. Commitment of what? Commitment to recognize yourself who you really are. Commitment to give you the space, the silence time, experiencing the quietening mind. Until unless you are not letting your mind quiet, then what happens? You are always fighting with the worldly life. The energy of world penetrates in your whole structure. Then you see you are not feeling comfortable because you are not experiencing the surrenderness with the energy which is helping you, caring you, loving you unconditionally. उसे फिर क्या होता है कि उसे फिर अपना इग्नोर्ड फील होता है वो, और जब वो एनर्जी इग्नोर्ड फील होती है, जो डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो कॉस्मिक एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आप अगर उसे रिकॉग्नाइज, अवेयर, ग्रैटिट्यूड के लेवल पे वेलकम या हग नहीं करते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, तो फिर क्या होती है, वो बेचारी मायूस होके आपके ही अस्तित्व में चुपचाप अपनी आंसू बहाती रहती है। वो चुपचाप आपके ही अस्तित्व में कोने में किसी कॉन्शियसनेस में, सब कॉन्शियसनेस में बैठ के वो आंसू बहाती है कि इसे तो पड़ा ही नहीं है मेरा, इसे ना टाइम है मुझे याद करने को, इसे ना टाइम है मुझे एक्सप्रेस करने को, इसे ना टाइम है मुझसे मिलने को, इसे ना टाइम है मुझसे हक करने को। वो एक्सपेक्ट नहीं करती है। लेकिन अगर आप अपनी टाइम में उनके लिए जो फोर्स है, जो कॉस्मिक फोर्स है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, अगर उसके लिए जब आप टाइम निकालते हैं, उसके लिए जब आप अपने कमिटमेंट के साथ, जब आप रोज कमिटमेंट के साथ उससे रोज समय निकाल करके आप अपने स्वयं से मिलते हैं, जो आपके स्वयं के अंदर है, ये कहीं बाहर नहीं है, ये किसी भजन कीर्तन में नहीं है, ये किसी सत्संग में नहीं है, ये किसी आउटर एक्टिविटी में नहीं है। आउटर एक्टिविटी भी आपके अंदर ही हो रही होती है। आउटर एक्टिविटी भी आपकी माइंड, आपकी अवेयरनेस के ही रिफ्लेक्शंस हैं। तो ये सारी चीज आपके अंदर हो रही है, ये कहीं बाहर नहीं हो रहा है। अगर आप मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, कुछ भी करते हो, उस जगह को नहीं पता है कि आप हो वहां। आपके अंदर बैठा एक अवेयरनेस को पता है कि आप हो वहां। आप जब पूजा करते हो तो पूजा करते वक्त आपके जो भाव आते हैं वो आपके अंदर से हो रहे होते हैं, वो कहीं बाहर कैलेंडर या मूर्ति या मंदिर में नहीं पाई जाती हैं। ये सिर्फ सारी एक्टिविटी आपके अंदर हो रही होती है। तो जो आपके अंदर एक साइलेंट सेल्फ बैठा है, वही सेल्फ है पूरे यूनिवर्स का, वही सेल्फ है पूरे ब्रह्मांड का, वही सेल्फ है इस पूरी एग्जिस्टेंस का। इसीलिए कहते हैं रोम रोम में भगवान है, रोम रोम में गॉड है, रोम रोम में इस पूरी दुनिया के इंटायर एग्जिस्टेंस में गॉड कहीं बाहर नहीं है, गॉड ऑलवेज अंदर है ना। तो हम लोग आज जो टॉपिक है वो हम बार बार ये कहते हैं कि कमिटमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, उसको सस्टेन करना है। जो चीज आपने शुरू किया, अगर आपने अपने स्वयं से मिलने की प्रक्रिया को शुरू की, आप एक दिन मिले और 2 दिन नहीं मिले, एक दिन मिले, एक दिन फिर नहीं मिले, फिर 5 दिन नहीं मिले, फिर चौथे दिन मिले, तो वो प्राप्ति आपको कभी नहीं होगी। क्योंकि जो आपके अंदर बैठा है वो ऑलवेज मायूस होके और स्ट्रॉन्गर लेवल पे एक और डीपर कॉर्नर में जाके बैठ जाएगा। फिर आप बुलाते रहेंगे तो नहीं आएगा, आप उससे लाख रिक्वेस्ट करेंगे, आप उससे लाख प्रवोक करेंगे कि प्लीज कम ऑन, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप में कमिटमेंट नहीं है, आप में रूटीन नहीं है, आप उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। और जहां कमिटमेंट नहीं है, जहां सिस्टमेबिलिटी नहीं है, जहां रूटीन नहीं है, वहां आपकी प्राप्ति अपने स्वयं के हायर सेल्फ के साथ कभी नहीं हो सकती है। देखिए, ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ अगर आप किस एरिया में ग्रोथ होना चाहते हैं, अगर आपको संसारी
chaotic वर्ल्डली लाइफ में ग्रोथ करना है, आप एंजाइटी लेवल पे ग्रोथ करना चाहते हैं, आप स्ट्रेस और तनाव के इल्यूजनरी वर्ल्ड को ही अपना रियल वर्ल्ड मान के उसमें ग्रोथ होना चाहते हैं, आप फ्री हैं, आप उसी ग्रोथ में लगे रहें, आप उस तरह के एनर्जी, उस तरह के सराउंडिंग से कवर्ड रहें, सराउंडिंग में रहें, तो आपकी ग्रोथ उस डायरेक्शन में ज्यादा होगी। अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ मीन्स आपका ट्रू सेल्फ का ग्रोथ, और ट्रू सेल्फ के ग्रोथ में जब आप अपने स्वयं की ग्रोथ को देखना चाहते हैं तो आपके chaotic वर्ल्ड, जो संसारी वर्ल्ड है, उससे आपको सेपरेट होना ही पड़ेगा। अगर आप अपने आप को संसारी वर्ल्ड से सेपरेट ना रखेंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। दो ग्रोथ कभी पैरेलल नहीं हो सकती हैं। इस दुनिया में जितने भी संत हुए हैं, जितने भी इनलाइटेंड हुए हैं, जितने भी अवेकन लोग हुए हैं, उनकी कभी भी पैरेलल दो फोर्स नहीं काम की हैं कि वो एक तरह से डीपर वर्ल्डली भी रहें, वर्ल्ड के सारे सर्कमस्टांसेस में अपने आप को इन्वॉल्व भी करें, और बहुत केयरलेस रहें कि किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, संसार के हर तबके के लोगों के साथ मिलते भी रहें, और उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, जो रियल ग्रोथ है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, बाकी तो सारी इल्यूजन ग्रोथ है। ये सारी ग्रोथ जो है वो एक दिन खत्म हो जाती हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। आज के ही समय में जो ये पूरा सिचुएशन है, ये बहुत बड़ी कम्युनिकेशन हमारे साथ कर रहा है, आपको बता रहे हैं कि आप हैं कौन और आपकी रियल ग्रोथ कहां है। आज बाहर की सारी ग्रोथ हेल्पलेस है ना, बाहर की सारी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, अभी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है। अगर कोई चीज हेल्प करती है आपको या कर रही है, वो आपकी इंटरनल डिवाइन, आपकी इंटरनल समझ, आपकी इंटरनल अवेयरनेस, और वो ग्रोथ हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के थ्रू ही पा सकते हैं। आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा कि आप किस तरह की ग्रोथ को प्रेफर करते हैं। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं या वर्ल्डली ग्रोथ चाहते हैं। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ज्यादा अवेयर होंगे, ज्यादा एफर्ट लेंगे, तो आपकी वर्ल्डली ग्रोथ ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएंगी। वर्ल्डली ग्रोथ आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की बाय प्रोडक्ट है, वो रही नहीं कर सकती है अटैच्ड। लेकिन वर्ल्डली लाइफ के साथ ग्रो होके आप स्पिरिचुअल ग्रोथ को चाहेंगे, ये कभी नहीं हो सकती है। जस्ट लोग उल्टा सोचते हैं। अभी होता क्या है कि व्हाट हैपेंस, आदमी को ये लगता है या मानव ये सोचता है कि अच्छा पहले मैं वर्ल्डली लाइफ की ग्रोथ ले लूं, बड़ा घर ले लूं, बड़ा गाड़ी ले लूं, बड़ा नाम कर लूं, खूब सारे पैसे कमा लूं, बैंक में रख लूं, उसके बाद जब समय मिलेगा, रिलैक्स जब हो जाऊंगा, तब मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करूंगा। अक्सर 99.9% लोग ऐसा ही करते हैं और फाइनली उनकी जीवन खाली हाथ आती है। कुछ तो लेके जाते नहीं है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाते हैं। इतना संसार जो बढ़ाया, इतना संसार की जो प्रपंच की और इतना सारा चीज जो उन्होंने इकट्ठा किया, वो भार बना पूरी लाइफ भर उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ तक नहीं ले जाने को। और फाइनली क्या हुआ कि जस्ट शिफ्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड, उनकी बॉडी यहीं रह जाती है एंड फाइनली द सोर्स इज मर्ज विद द ऑलरेडी देयर, है ना। तो क्या इंपॉर्टेंट है, जब हम अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को तवज्जो देते हैं, जब हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में ऊपर आते हैं, उसके लिए कमिटमेंट होते हैं, उसके लिए हमारे रूटीन वाइज सस्टेनेबिलिटी को हम टाइम देते हैं, तो हमारी जो बाहर की ग्रोथ है, जो हमारी वर्ल्डली ग्रोथ है, ये ऑटोमेटिकली धीरे 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 हमारी अलाइन के साथ हो जाती है। इसमें फिल्टर होगा। फिल्टर क्या होगा कि जो चीज आपको जरूरत है, जो चीज सच में आपको चाहिए, जो चीज सच में इंडीड आपके लिए बेनिफिटेड है, वही चीज आपके लाइफ में धीरे धीरे अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। जो चीज अनवांटेड है, अनवांटेड फाइल, अनवांटेड कुकीज हैं, ये सारी चीज धीरे धीरे आपकी लाइफ से डिटैच हो जाएंगी और डाइल्यूट हो जाएंगी। फिर आप प्योरेस्ट फॉर्म के बीइंग को एक्सपीरियंस करेंगे, प्योरेस्ट फॉर्म के आनंद को एक्सपीरियंस करेंगे। अभी हम लोग कौन सा भजन सुन रहे हैं? आनंदमयी
चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी, जो आनंदमयी है, चैतन्यमयी है, सत्यमयी है, वो आपके विदीन है. दैट फेमिनिन एनर्जी, द शक्ति स्वरूपा इज विदिन यू. वी सिंपली इग्नोर एंड रिजेक्ट that call which comes always and talk to you. Please come to me, hug me, come to closer and assist me. I am always there with you. जब इस चीज को आप इग्नोर करते हैं तो पूरी लाइफ टाइम जब आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं उस वक्त आपके प्रेयर्स और आपकी कॉलिंग मैटेरियलाइज या मैनिफेस्ट नहीं होती है और आप फ्रस्ट्रेट होते हैं. कहते हैं मैं तो इतना पूजा किया, इतना प्रार्थना किया, इतना भी कुछ किया, फिर भी फाइनली कुछ नहीं हो रहा है. इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों आ गई हमारी लाइफ में? इतनी सारी प्रॉब्लम इसलिए आपकी लाइफ में आ गई कि अभी तक आप भटक रहे हैं, अभी तक आप इधर उधर घूम रहे हैं, अभी तक भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं, अभी तक आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हैं, अभी तक वो जिससे आपको राहत मिलेगी उस सोर्स को आप बाहर ढूंढ रहे हैं. तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर फैमिली, अभी भी समय है. स्टॉप, पॉज, रुको और अपने अंदर वापस घुसते चले जाओ, अंदर जाते चले जाओ और देखते चले जाओ कि अंदर की जो दुनिया है वो बाहर की दुनिया से विराट अनंत विस्तृत है और बहुत खूबसूरत है. आपको सुरक्षित, आपको खुश और आपको आनंदमय के स्टेट में रखती है. लीस्ट एफर्ट में आपकी काम होती है, कम से कम एफर्ट में आपके सारे काम बनने शुरू होते हैं. वो कैसे क्या होता है? कोई मंत्र से नहीं, कोई तंत्र से नहीं, कोई पूजा पाठ से नहीं, कोई विधि विधान से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वयं के अंदर जाने से, अपनी स्वयं के अंदर अपनी मन को देखने से. रोज जब हम अपने स्वयं और अपने मन को देखना शुरू करते हैं तो हमारी इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी, हमारी सोर्स, ये सारी चीज अपने आप में सिमटने लगती हैं. और जैसे ही आप अपने आप से सिमटने लगते हो तो आप पूर्णता को एक्सपीरियंस करते हो, आप पूर्ण हो जाते हो, आप एक फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज की वो सोर्स बन जाते हो जिस सोर्स में आपकी बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस मर्ज हो जाती है. फिर वो सोर्स आपकी बायोलॉजिकल प्रेजेंस से ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं. फिर वो सोर्स, कहने को आप शरीर में दिख रहे हो लेकिन आपके थ्रू वो इंफिनिटी की सोर्स ज्यादा रेडिएट करनी शुरू करती है, जस्ट लाइक अ लाइट. चॉइस आपके हाथ में है. आपको वर्ल्डली लाइफ की ग्रोथ चाहिए या स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ चाहिए. स्पिरिचुअल लाइफ आपके दोनों साइड को बैलेंस करता है और आपको बेस्ट लाइफ गिफ्ट करता है. लेकिन अगर आप सिर्फ वर्ल्डली लाइफ के ग्रोथ में अपनी अटेंशन एंड इंटेंशन को लगाते हैं तो आप स्पिरिचुअल लाइफ से धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं. दूसरा सीख आज का ये है, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, वेरी केयरफुल. किस एरिया की ग्रोथ में आपका दिल चाहिए, किस एरिया की ग्रोथ को आप सच में ग्रो करना चाहते हैं. अगर जो ग्रो करना चाहते हैं देन यू हैव टू बी वेरी कमिटेड टू योर सेल्फ. कमिटमेंट एंड रेगुलरिटी, जो सस्टेनेबिलिटी है, ये बहुत जरूरी है. आज परम प्राण योग जिस भी मुकाम पे पहुंचा है वो उस मुकाम पे पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, वो है कमिटमेंट और सस्टेनेबिलिटी. अगर परम प्राण योग का आधार हर 2-2 दिन में अपनी चॉइस को बदलता, हर 2-2 दिन में चलो अब वो कर लेते हैं, चलो अब ये कर लेते हैं, तो परम प्राण योग आज जिस ऊंचाई पे है या जहां भी पहुंची है ये पहुंचता नहीं, कभी नहीं पहुंच सकता था. आपके साथ लोग अट्रैक्ट या जुड़ेंगे तभी जब आप में प्योरेस्ट, ऑनेस्ट कमिटमेंट एंड सरेंडरनेस देखेंगे. और ये सरेंडरनेस आपकी रिफ्लेक्शंस हैं, आपकी मूल तत्व हैं. आप जिस भी काम में हो, आप जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी जिस भी एरिया में आपका जीवन यापन हो रहा है, उसमें आपकी कमिटमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लेकिन
कॉन्शियसली मीन्स अपने स्वयं को जानने के साथ साथ, ये भी जब आप अपने स्वयं के साथ साथ जब जुड़ना शुरू करते हैं, जब स्वयं के साथ साथ आप रोज लिपटना शुरू करते हैं, तो फिर बाहर की दुनिया की जो काम आप कर रहे हैं वो ज्यादा रिदमिक हो जाती है, ज्यादा अलाइनमेंट में हो जाती है, वो ज्यादा आनंद के साथ आप करते हो। फिर लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि वैसी अपॉर्चुनिटी जो आपको एंजाइटी या स्ट्रेस में डाल सकती है, वैसे ऑप्शंस ही आपके पास कम होंगे, क्योंकि आप अपने आप में एक चलते फिरते ज्योतिर्लिंग हो जाते हो, एक एनर्जी फील्ड हो जाते हो, लाइट के गोले हो जाते हो, प्रकाश क्षेत्र हो जाते हो। वो प्रकाश ऑलवेज अपनी दुनिया से, इस पूरी ब्रह्मांड से उस प्रकाश के स्वरूप को ही अट्रैक्ट करती है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन और आपकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह का हो जाएगा। आइए अब हम ध्यान करते हैं, जिस सोर्स की बात इतनी देर हम कर रहे थे उस सोर्स से कनेक्ट होते हैं। जैसा कि रोज हम लोग ध्यान में अपने स्वयं के साथ बैठना, सांसों पे धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को ले जाना, और अवेयरनेस और सांस एक क्षण के बाद दोनों कब मिल जाते हैं, कब विलीन हो जाते हैं, आपको पता तक नहीं चलता है, और आप मात्र उपस्थित रहते हैं, मात्र अवेलेबल होते हैं अवेयरनेस के लेवल पे, ना शरीर के लेवल पे, ना नाम के लेवल पे, ना आइडेंटिटी के लेवल पे, ना आपके ओहदे के लेवल पे, ना आपकी औकात के लेवल पे, कि सारी लेवल फिनिश हो जाती हैं। आप मात्र एक शून्यता को एक्सपीरियंस करते हैं, और वो शून्यता आपका मूल पहचान है, आपकी रियल आइडेंटिटी है। और वो रियल आइडेंटिटी आपके स्वयं, जो पूरी ब्रह्मांड की स्वयं है, उससे आपको दूध में पानी की तरह मर्ज कर जाती है, जैसे भगवान में विलय हो जाना है ना। सब लोग अपनी अपनी जगह पे शांति से, जैसे भी जहां बैठे हैं, बिल्कुल कमिटमेंट के साथ कि अगले 10-15 मिनट वी विल नॉट मूव। हम अपने शरीर और अपनी चैतन्य की स्थिति से अपने स्वयं के ग्रोथ के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अभी मैं ये एफर्ट्स, अपनी आइडिया को डेडिकेट करती हूं प्रभु के चरण में। शांति से बैठें, अपने शरीर को पहले शांत का निर्देश दें। इंस्ट्रक्ट योर होल बॉडी, प्लीज experience calm. Please feel the silence. Please feel the blissfulness. आनंदमयी को एक्सपीरियंस करो। जैसे ही धीरे धीरे आपका शरीर शांत, ठहरा हुआ, स्थिर और बिल्कुल शांति को अनुभव करना शुरू करता है, वैसे ही आपके अंदर की डीम्ड लाइट की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जस्ट जैसे ही हमारी चैतन्य, जैसे ही मेरा शरीर, जैसे ही हमारी अवेयरनेस अपने आप में सिमटने लगती है, शांत होने लगती है, स्थिर होने लगती है, तो जस्ट अपोजिट जो हमारे अंदर की बहुत टिमटिमाती हुई लाइट थी, उसकी रोशनी बढ़ने लगती है। और जितना आप शांत और स्थिरता को एक्सपीरियंस करेंगे, आपके अंदर की दैविक अलौकिक प्रकाश, जो प्राण स्वरूप है, उसकी रोशनी तेजस्वमयी हो जाती है। फिर वो अपनी रोशनी से आपके पूरे शरीर और अस्तित्व से इस पूरी ब्रह्मांड में फैलनी शुरू हो जाती है। तो आइए हम धीरे धीरे अपने अस्तित्व के, शांति के अनंत अस्तित्व में गहराई में उतरते जा रहे हैं, और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारे पूरे शरीर से ज्योति प्रकाश धीरे धीरे तेज चमकना और पूरे शरीर से बाहर आनी शुरू हो रही है। एक एक रोम से,
एक एक स्किन से, एक एक अस्तित्व से, आपके पूरे शरीर के अस्तित्व से वो प्रकाशमयी ऊर्जा, कॉस्मिक डिवाइन अलौकिक एनर्जी फील्ड अब इतनी ब्राइट हो गई कि अब आप अपने शरीर को ही नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रोशनी का गोला, जैसे सूर्य। आप महसूस करेंगे आपके पूरे रूम में, जिस भी जगह पे आप बैठे हैं, पूरा रूम प्रकाशमय हो गया हो। प्रकाश ही प्रकाश है। कोई वस्तु ना रहा वहां, कोई जीव ना रहा वहां, कोई उपस्थिति ना रही हो, सिर्फ तेजों में प्रकाश की उपस्थिति, तेजों में अस्तित्व, सवितुर्य वरेण्यम, सवितुर वरेण्यम, उस प्रकाश की रोशनी, मात्र एक उपस्थिति, मात्र एक अस्तित्व। पूरी ब्रह्मांड की प्रकृति से एक अलौकिक खुशबू को आप अनुभव करें, जो इसके पहले कभी भी आपने इस दैविक अलौकिक खुशबू को आपने कभी अनुभव किया ही नहीं। ये खुशबू है, सिर्फ आप अवेयर हो, ये खुशबू आप तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। हमारे मानसिक गंदगी के कारण हम अपने अंदर के विराट अस्तित्व और अलौकिक खुशबू को कभी आनंद से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम ऑलवेज अपने स्वयं से डिसकनेक्टेड स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जैसे मात्र ही हम अपने स्वयं में समाते हैं, द मोमेंट यू एक्सपीरियंस योर ओन सेल्फ, द मोमेंट यू एक्सपीरियंस योर ओन अवेलेबिलिटी, आप अपने अंदर के छुपे उस ज्योति पुंज को भी देखते हैं। स्वर्गीय फूल के बगान की खुशबू भी आपको आती है, जो इस धरती पे किसी भी फूल की खुशबू वैसी नहीं हो सकती। अलौकिक दिव्य दर्शन अपने स्वयं के उस ज्योतिर्मय अस्तित्व की। आज का जो मंत्र है, मानसिक रूप से सब लोग जाप करेंगे, वो है ओम भवम भवामि। ओम भवम भवामि। ओम भवम भवामि। इस मंत्र का मतलब है हमारे भाव में भावपूर्वक मैं विलीन हो जाऊं। द इंटेंशन, अटेंशन, डिजायर, efforts, this activity, all are the extension of your bhav, and you are allowing yourself to going deeper in the emotional state of consciousness, in this bhav, your intention, your divine intention। कहते हैं जहां इंटेंशन जाती है
वहीं अटेंशन फ्लो होती है, एंड रिवर्स, जहां अटेंशन जाती है वहीं इंटेंशन फ्लो होती है। जहां चित्त वहां प्राण, जहां प्राण वहां चित्त। हम अपनी मेंटल अवेयरनेस से जिस जगह उपस्थित होते हैं, हमारी पूरी प्राणिक ऊर्जा, प्राणिक अस्तित्व वहीं समा जाती है। इसीलिए जब मैं योग निद्रा में अपने पूरे शरीर को ट्रैवल करता हूँ, तो इंटेंशन के साथ साथ लाइफ फोर्स एनर्जी जो प्राण है वो भी वहाँ विद्यमान हो जाती, वो भी वहाँ उपस्थित हो जाती है। तो उस जगह की जितनी भी ब्लॉकेजेस एनर्जी होती हैं वो सब विलीन हो जाती हैं, है ना। तो अपनी इंटेंशन एंड अटेंशन में अभी जो आप अपने ज्योतिर्मय प्रकाश में विलीन अस्तित्व में पा रहे हैं अपने आप को, इस पूरे प्राणिक अस्तित्व में, अलौकिक दिव्य ऊर्जा में आपके किरण से इस पूरी ब्रह्मांड के किरण की अलाइनमेंट हो रही है। यू बिकम वन विद द यूनिवर्सल फोर्स, यू बिकम वन विद द ब्रह्मांडीय फोर्स, कॉस्मिक फोर्स। और ये फोर्स is the highest force to protect you, the highest force to make you happy, make you comfortable, make you आनंद। आइए मानसिक जाप करते रहें, ओम भवम भवामी। सांस लेते वक्त ओम और छोड़ते वक्त भवम भवामी। सांस लेते वक्त ओम, आधी सांस छोड़ते वक्त भवम और आधी सांस छोड़ते वक्त भवामी। सांस को 2 बार छोड़ना है, लेना 1 बार है, छोड़ते वक्त भवम भवामी, मानसिक तौर पे। आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी परमेश्वरी। इस धरती पे इससे बड़ी कोई आनंद है क्या? इस पूरी ब्रह्मांड के अस्तित्व में इस आनंद से बड़ी कोई घटना है क्या? अपने आनंद को सेलिब्रेट करें, इस नशे में रहें, और ये नशा पूरे जीवन भर आपके पूरे अस्तित्व को बदल के रख देगा। ओम नमः शिवाय। Thank you so much. Meeting you tomorrow again at the same time.